Welcome my dear students for class 10. Today we are going to start chapter number 7. We haven't discussed chapter number 6 because there are few things that has to be discussed which can be taken from chapter number 7 and used in chapter number 6. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट टॉपिक इन दिस ईयर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकॉज लास्ट ईयर वी स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला. इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है डिस्टेंस फार्मूला का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. क्लास में आई कैन डिस्कस दैट ऑन द वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड. But here you just know that what is the distance formula and how why we use and how we use. Okay, so the distance formula between any two points, like we are discussing about Cartesian plane. So distance between any two points on a Cartesian plane such that the two points are, first point is P of x1 y1 and Q x2 y2 can be given as the distance, that is distance is equal to PQ equals to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट में रखेंगे. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. इसको यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हर बार ऐसे कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाया रहेगा. मान लीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहला पॉइंट है P, मतलब कुछ भी हो सकता है. P है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,6 और Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,4. तो बिगिनर्स के लिए क्या होता है, हम लोग लिखते हैं लेट. क्या लिखते हैं भाई, लेट P ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू P 1,6. मतलब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 6 है. एंड Q सिमिलरली x2, y2, मतलब x2 की वैल्यू हो गई 6 और y2 की वैल्यू हो गई 4. सो दीज आर टू थिंग्स द वैल्यूज. लाइक ये बच्चे सोचेंगे x1 y1 x2 y2 क्या है, तो ये वैल्यूज हैं जो कार्टेशियन पॉइंट्स दे रहेंगे उनके. ठीक है भाई, तो इस पे बात करते हैं. तो डिस्टेंस निकालना है किसका, P और Q का. देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय distance formula, by distance formula what do we get, we get PQ or whatever the coordinates, like if they are A and B so you can write AB, if they are M and N then you can write MN. So I have PQ, so PQ is equal to the formula x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. Is that clear for you all? Now this is what we get. x2 means 6 and here minus, and x1 means 1, 6 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 means 4 और y1 means 6 का होल स्क्वायर. तो हो जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 6 मतलब माइनस टू का स्क्वायर 4. तो हो गया √29. यहाँ लिखेंगे यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसी न किसी यूनिट में रहता है. जनरली हम लोग पिछले क्लासेस में सेंटीमीटर मीटर यूज करते थे, बिकॉज हियर वी डू नॉट हैव मीटर और सेंटीमीटर, द यूनिट्स डज नॉट रिप्रेजेंट, सो वी विल राइट जस्ट units. Okay, this is how we use distance formula for simple questions where just the question says that find the distance between the given two points. Question number 1 of exercise 7.1 says that find the distance of the between the following points. So there will be 3 questions. You will be using the same method to solve question number 1 of exercise 7.1. Okay, now let's discuss further. Now there is another topic which is called collinear and non-collinear. Collinear और non-collinear पिछले साल पढ़ाया था हमने क्लास 9 में कि क्या होते हैं. collinear points are those points which lie on the same line. एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को collinear कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे लाई होने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, non-collinear. तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या दिए हुए पॉइंट्स collinear हैं. There are 3 points. Are these points collinear or not? So let me tell you the concept that how will you find out if they are collinear or non-collinear by using distance formula. Like 3 points being collinear is the condition that all of them lie on the same point. So let us consider these 3 points are lying on the same line. So A is -1,5, B is 2,1 एंड सी इज -4, -3. ठीक है, तीनों पॉइंट्स हो गए. तो कोलिनियर होने का कॉन्सेप्ट ये है, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, द गिवन
points are collinear if, कब कोलिनियर होंगे भाई? जब A से B तक की दूरी दैट इज AB प्लस B से C तक की दूरी दैट इज BC इज इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब कि AC तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी जब ऐड करेंगे तो AC, मतलब एक ही लाइन पे है ना। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ से यहाँ तक चलें, तो मतलब आप पूरी दूरी चले तो वो एक ही कोलिनियर, तब जाके वो कोलिनियर कहलाएंगे। दैट्स वाई सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी नीड टू मेक आउट, दैट ये पता चलना चाहिए कि ये है। तो उसके लिए पहले हमको AB चाहिए, BC चाहिए और AC चाहिए। जब ये सिचुएशन हम लोगों के हाथ में आ जाएगा तो हो जाएगा। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस, इस बार आप x1 y1 बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो सीख जाएंगे। सो AB इज इक्वल टू, नाउ वी विल टेक 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये निकल गया है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। हाउ मच इज दैट? 5 यूनिट्स। ठीक भाई। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस BC निकालते हैं। BC निकालने का तरीका क्या है भाई? 2 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 सॉल्व करते जाइएगा, आपको प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। प्लस, क्योंकि आपने सोचा होगा माइनस था तो ये प्लस, क्योंकि ये 2 - -1 प्लस ही तो होता है, तो 2 - -4 2 + 4 हो जाएगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे। 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 का होल स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है। दिस वन इज 6 का स्क्वायर 36 एंड दिस वन इज 4 का स्क्वायर हाउ मच 16, दैट इज √52 यूनिट्स। ओके, how much is this? Like approximately 7.1, but we will write this only. Then we will find out AC. Let us find out AC. AC is this much, so square root of -4 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -3 लिखते हैं, -3 और -5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। तो -1 और +1 क्या होता है -3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस, और ये 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। हाउ मच इज दैट? इज 73 यूनिट्स। अभी आप ध्यान से देखिए, क्या ये AB और BC ऐड करने पर AC आएगा? नहीं, सिंस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 इज नॉट इक्वल टू square root of 73, therefore A, B and C are non-collinear. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन बिलीव, आपके एक्सरसाइज में मिलेगा। दूसरे टाइप का, इसको हम लोग टाइप 2 नाम दे सकते हैं। पहला तो डिस्टेंस पे था, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे में क्या करेंगे कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, ये पता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप 3, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स पे क्वेश्चन आता है कि किस तरह का पॉलीगॉन है। जैसे कि एक ट्राइंगल को आपको पूछ लेगा, ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल, 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलर ट्राइंगल में नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। देन देयर आर साइड्स के बेसिस पे बात कर लेते हैं। देन देयर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। देन देयर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विच सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 कुछ चीज़ों पे आपको क्वेश्चन आएगा कि पता कीजिए। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ए हो गया 1,6, बी मान लेते हैं -3, -2, और सी मान लेते हैं 2,5। ठीक है भाई, आपको कहता है कि क्या ये किस तरह का ट्रायंगल है, ज़रा आप बताइए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि क्या है। आइसोसेलेस के लिए क्या कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो काम बन जाता। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो या तो AB = AC हो जाए, है ना। तो मतलब कि हर केस में आपको डिस्टेंस तो निकालना रहेगा, तो आप तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। AB निकाल लीजिएगा, AC निकाल लीजिएगा और BC निकाल लीजिएगा,
और जब आपको पता चल जाए आप उनको कंपेयर कीजिएगा. इफ दे आर इक्वल देन दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ दे आर नॉट इक्वल देन दैट इज व्हाट डू यू कॉल इट, स्केलेन ट्रायंगल. अभी यहाँ तो मैं डिस्टेंस निकालना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा. इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी जाता है, इसलिए मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं. तो आप खाली कॉन्सेप्ट समझिए कि आप डिस्टेंस निकालेंगे. ए बी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, फिर कंपेयर कीजिए क्या तीनों बराबर हैं, देन इक्विलेटरल. अगर कोई भी दो बराबर हैं देन आइसोसेलेस, अगर कोई नहीं बराबर है तो स्केलेन ट्रायंगल. और फिर अगर आपसे पूछ लेता है क्या राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप चेक कीजिएगा कि क्या वो तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं. जैसे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जैसा कुछ बना रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम जैसा. इफ इट शोज समथिंग लाइक दिस देन इट इज व्हाट, अ राइट एंगल ट्रायंगल. पहला तो ट्रायंगल पे हो गया. दूसरा होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है. क्वाड्रिलेटरल पे अगर आप बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बहुत किस्म के होते हैं. आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं. तो चलिए 4 साइड्स अगर ए बी सी डी, तो इसके आप निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, फिर निकालेंगे डी ए. ये चारों साइड्स आ गए डिस्टेंस फार्मूला से. अब स्क्वायर कब कहलाएगा, जब ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे. अगर कोई भी एक डिफरेंट होगा तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर. ये आपसे पूछेगा क्या दिए हुए कोऑर्डिनेट्स, एक चारों कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. अगर ये चारों साइड्स आपने निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है, इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका इसका इसका, बात समझने की कोशिश कीजिएगा. तो जो है अगर चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो यस इट इज़ ए स्क्वायर, अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर टोटली. फिर जाएगा आपका स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल आ जाएगा. रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी. ऐसा कुछ आता है तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा. ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स का पता नहीं, पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर इक्वल. तो ये सारी चीज़ें हैं. वैसे अगले लेक्चर में भी मैं इस पे डिस्कस करूँगा. सो फॉर नाउ योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5. 1 से 5 तक ही कीजिएगा. बाकी क्वेश्चन आई विल ट्राई टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, if there is any doubt related to this video you can post in our group. Thank you, have a good day.